Good morning, students of class 3. Students, I am sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had completed exercise C of comprehension and frame sentences of lesson 1, The Boy Who Cried Wolf. And I'm sure all of you must have completed the make sentences in your English notebook. Now students, today I'm going to revise the frame sentences of lesson 1, The Boy Who Cried Wolf, and then I'm going to start with the language structure exercises of lesson 1. So all of you, please take out your English notebook and your Wordsworth English Reader book. Students, please take out your English notebooks and your Wordsworth English Reader book. Student, first of all, I'm going to revise the make sentences or the frame sentences which we have made from the new words of lesson 1. So, the first wow word of lesson 1 was graze, and the sentence is the cows tend to graze in herd. The cows tend to graze in herd. Second word was pasture, and the sentence is horses are grazing in the pasture. Horses are grazing in the pasture. Students, I'm sure all of you have learned the meanings. The meaning of graze is to eat grass in a field, and the meaning of pasture, a land covered with grass. Now, the third word is dense, and the meaning is thick, and the sentence is wild animals live in dense forest. The fourth word is panicked, and the meaning is to be afraid, and the sentence is the crowd panicked at the sound of gun. The crowd panicked at the sound of gun. The fifth word is prank, and the meaning is trick, and the sentence is they thought that the fire alarm had been set off as a prank. They thought that the fire alarm had been set up as a prank. Then the sixth word is frightened. The meaning is scared. And the sentence is the alarm frightened the thief away. The alarm frightened the thief away. Then the sixth word is enraged, and the meaning is very angry. And the sentence is the trainer backed away from the enraged tiger. The trainer backed away from the enraged tiger. The seventh word is attacking. That means to jump on someone. Attacking, to jump on someone. And the sentence is an angry mob is attacking the palace. MOB, mob means a group of crowd of angry people. An angry mob is attacking the palace. The eighth word is regretted. Regretted means felt sad and sorry about something. Regretted meaning felt sad and sorry about something, and the sentence is he regretted his harsh words. Then the last new word is sorrow. The meaning is sadness, and the sentence is joy often comes after sorrow, like morning after night. So we have finished the frame sentences. Now students, I'm going to start with the language structure exercise. So all of you, please turn your Wordsworth English Reader book to page number 10. I'll be starting with exercise A of language structure. And this exercise is based on word
building. Now the exercise is unscramble the following letters. Unscramble the following letters to form words. Unscramble the following letters to form words from the story. This is the question. कुछ वर्ड्स का मीनिंग आप नहीं निकाल सकते क्योंकि वो वर्ड्स में जो लेटर्स हैं वो गलत ढंग से अरेंज है. अब हमें क्या करना है, हमें उन वर्ड्स को करेक्टली अरेंज करना है. लेटर्स को, वो लेटर्स को हमको करेक्ट अरेंज करना है ताकि हम वर्ड लिख सकें. फर्स्ट जो गलत ऑर्डर में लेटर्स हैं वो है ATPSRUE. अब आप देख सकते हो कि ये करेक्ट स्पेलिंग नहीं है क्योंकि जितने भी लेटर्स हैं ये गलत ढंग से अरेंज है. अब अनस्क्रैम्बल का मतलब है कि हमें इन लेटर्स को प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है सो दैट ये एक वर्ड फॉर्म कर सके जिसका कोई मीनिंग है. करेक्ट वर्ड वो होता है बेटा जिसका कोई मीनिंग निकलता है. अब इसका ATPSRUE इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है बिकॉज दिस इज द इनकरेक्ट स्पेलिंग. हमें क्या करना है, हमें इन लेटर्स को, अल्फाबेट्स को करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना. करेक्ट सीक्वेंस को अरेंज करने को अनस्क्रैम्बल कहते हैं. फाइन. अब इससे जो वर्ड बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ध्यान रखना है कि जितने लेटर्स इसमें हैं उतने ही लेटर्स हमारे वर्ड्स में आने चाहिए. तो हम काउंट करते हैं कितने लेटर्स हैं इसमें. 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 लेटर का ही हमारा वर्ड बनना है. और इससे जो वर्ड बनेगा जो हमने लेसन में पढ़ा है, दैट इज पास्चर, अ लैंड कवर्ड विद ग्रास. नाउ लेट्स काउंट कि हमारे टोटल 7 लेटर्स आ रहे हैं कि नहीं. 1 2 3 4 5 6 7. अब आप देखो अल्फाबेट सेम है बट अरेंजमेंट इनका पहले में गलत था. हमने उनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज कर दिया, अनस्क्रैम्बल कर दिया. तो वर्ड क्या हो गया, पास्चर. पास्चर इज अ फील्ड कवर्ड विद और अ लैंड कवर्ड विद ग्रास. तो पहला वर्ड क्या हुआ, पास्चर. प्लीज राइट पास्चर इन द फर्स्ट ब्लैंक. देन जो सेकेंड गलत स्पेलिंग वर्ड की थी, दैट इज RPAKN. और इससे जो वर्ड बनेगा वो हमें ध्यान रखना है कि जितने लेटर्स काउंट करने इसमें है उतने ही उसमें आने चाहिए. सो 1 2 3 4 5 लेटर्स हैं. सो वी राइट PRANK, प्रैंक, है ना. प्रैंक मीन्स ट्रिक. किसी को बुद्धू बनाने के जो ट्रिक करते हैं दैट इज नोन एज प्रैंक. सो RPAKN क्या हो गया, PRAKN, प्रैंक. देन जो थर्ड है दैट इज RENAEGD. इससे जो वर्ड हमको इसको सीधे ऑर्डर में करके हमको ऐसा वर्ड बनाना है जिसकी मीनिंग निकले. सो लेट्स काउंट दी अल्फाबेट्स. 1 2 3 4 5 6 7. राइट. और जो इससे वर्ड बनेगा उसका मीनिंग होना चाहिए. क्लियर. सो द मीनिंग वर्ड इज enraged. Enraged means very angry. Enraged, very angry. Let's count 1 2 3 4 5 6 7. 7 letters यहाँ है, 7 यहाँ पे है. So enraged means very angry. Enraged, very
The fourth, EESHP. I'm sure all of you must have guessed. 5-letter word बनेगा and the word is sheep. 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 So we have done the first 4 jumbled order words, and now we have written the words which do have a meaning. वो स्पेलिंग जो कोई मीनिंग जिससे वर्ड बने एंड उस वर्ड का कोई मीनिंग निकले तो वो वर्ड है, बट दीज आर नॉट वर्ड्स बिकॉज दे आर नॉट कन्वेइंग एनी मीनिंग. So first is pasture. Pasture is a land covered with grass. Second is prank. Prank means trick. Third is enraged. Enraged means very angry. And fourth is sheep. Sheep, all of you know. Now, the fifth one. That is OSROW. Let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 and so SORROW. Sorrow. Sorrow means sadness. Let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letters यहाँ है, 6 letters यहाँ भी होंगे. So जो word बना that is sorrow. Then the next word is ONELLY. और जो word बनेगा that is how many letter word? 6 letter word. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lonely. Lonely means all alone. LONELY. 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 Fine. Now, the 7th one is EZGRA. Now we need to write a 5-letter word. And 5-letter word is graze. GRAZE. Graze means to eat grass. Graze means to eat grass in a field. Then the last one is SRCADE. Odd. इससे क्या word बनेगा? 6-letter word, and that is scared. 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 Scared means frightened, afraid. Fine. So we have framed 8 words. हमने unscramble किया और jumbled order of letters को correct order में करके correct word लिखा. First word जो हमारा that is pasture. 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 Second word is prank. 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 The third word is enraged. 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 The fourth word is sheep. 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 The fifth word is sorrow. That is SORROW. Sorrow. The sixth word is lonely. 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 The seventh word is graze. 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 The eighth word is scared. That is SCARED. Scared. Now only thing to remember, keep in mind while doing such kind of exercises कि जितने आपको काउंट करना है, जो वर्ड में जितने लेटर्स हैं, आप जो वर्ड फ्रेम करोगे उसमें उतने ही लेटर्स होने चाहिए. सो आपको ये इम्पोर्टेंट है बेटा कि आपको लेटर्स के नंबर को काउंट करना है. जितने इधर आएंगे उतने ही इधर भी आएंगे. सो आई होप एवरीबडी हैज डन स्टूडेंट्स. सबने लिख लिया इसको बुक में. दिस एक्सरसाइज हैज टू बी डन इन द टेक्स्ट बुक itself. Fine. And those who are not having the textbooks, please write this in your notebook right now. And when you purchase the textbooks, you can always copy it from the next book, from the notebook to the textbook. Clear? So, जिनके पास
अभी टेक्स्ट बुक नहीं है, they will do this exercise in the English notebook, and once you get the new textbooks, you can always copy from the notebook to the textbook. So I hope everyone has done. So students, now I'm going to erase and start with the next exercise on alphabetical order. अब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, होप सबको समझ में आया. जैसे अनस्क्रैम्बल अभी आपको लग रहा था क्या, अभी सबको समझ में आ गया कि अनस्क्रैम्बल क्या होता है. सेम वे अभी सब सोच रहे होंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है. फाइन, सो आई विल एक्सप्लेन दैट आल्सो. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अब बेटा सब इसको पहले समझो. Alphabetical order. What is alphabetical order? सबको अल्फाबेट्स पता है. There are total 26 alphabets in English language, है ना. हमारे जो अल्फाबेट स्टार्ट होते हैं वो ए से स्टार्ट होते हैं. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. ये टोटल 26 अल्फाबेट्स हैं. अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आता है? ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, ऐसे, है ना. अगर हम लिख दें, हमसे कोई अल्फाबेट पूछे, हम बोले आर एस ए देन एफ देन एल, तो क्या ये अल्फाबेट के ऑर्डर में है? नहीं, ये गलत है. अल्फाबेट का एक ऑर्डर है. जैसे नंबर्स जब हम काउंट करते हैं तो हम 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं, है ना. हम नंबर जब काउंटिंग करते हैं तो हम 5 6 4 2 1 ऐसे नहीं बोलते. सेम वे अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये होता है कि सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद बी के बाद सी डी ई एफ एंड सो ऑन. कि सबसे पहले ए आएगा और सबसे लास्ट में जेड आएगा. दिस इज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. और आपको सबको पता है, इसीलिए जब आप प्री केजी में होते हैं, LKG में होते हैं, तो आपको अल्फाबेट्स लर्न कराए जाते हैं. एंड यू लर्न इट इन द ऑर्डर ओनली. A after A, B after B, C. तो दिस इज नोन एज द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. क्लियर? अभी इसको सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं. और ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे इसमें ये है कि अल्फाबेट के ऑर्डर के हिसाब से हमको वर्ड्स अरेंज करना है. फाइन. अल्फाबेट का जो ऑर्डर है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी नीड टू अरेंज द वर्ड्स. Next exercise B is arrange the following words in alphabetical order. अभी अल्फाबेटिकल ऑर्डर सबको समझ में आ गया है. फर्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स आर BALL ball, then fish. This exercise please do it in your notebook. Fine. Then apple and then catch. ये 4 सेट ऑफ वर्ड्स हैं और हमको इनको करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दैट मीन्स पहले ए से वर्ड्स आते हैं जो, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से एंड सो. फाइन. सो अभी इसका जो हम आंसर लिखेंगे, बॉल स्टार्ट्स विथ बी. फाइन. फिश स्टार्ट्स विथ एफ, एप्पल स्टार्ट्स विथ ए एंड कैट स्टार्ट्स विथ सी. अब अगर आप इन चारों वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है उनको आपको देखना है. फर्स्ट लेटर. अब
BFAC, इन सब में अल्फाबेट्स में सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आता है? ए से कौन सा वर्ड है? बॉल, फिश, एप्पल और कैच, एप्पल। तो हम सबसे पहले राइट एप्पल, बिकॉज एप्पल बिगिंस विद ए एंड ए का इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट। एप्पल ए से स्टार्ट होता है, एप्पल की स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है एंड ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट। नाउ एप्पल हमारा हो गया। अब which three words are left? Ball, fish and catch. अब सेकेंड एप्पल ए के बाद बी, बी से कोई वर्ड है? यस, बी से बॉल है। तो ए के बाद कौन सा लेटर आता है? बी। तो बी स्टार्ट्स, दिस बॉल स्टार्ट्स विद बी, सो हमने सेकेंड पे क्या लिखा? बॉल को। फाइन, ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट, तो ए से एप्पल फर्स्ट हमारा वर्ड हो गया। बी सेकेंड लेटर ऑफ द अल्फाबेट, सो बी से बॉल हमारा सेकेंड वर्ड हो गया। अब थर्ड अल्फाबेट कौन सा आता है? सी। सी से कोई वर्ड है? यस, कैच इज देयर, सो थर्ड नंबर पे हम क्या लिखेंगे? कैच। फाइन, थर्ड नंबर पे कैच। अब बचा कौन सा? एक ही बचा है, वो लास्ट लिख देंगे फिश, बिकॉज एफ, इन चारों का अगर हम ऑर्डर देखें ए बी सी एफ, लास्ट में एफ ही आएगा। फर्स्ट लेटर ए अल्फाबेट में सबसे पहले आता है। सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर बी है, बी सेकेंड नंबर पे आता है, तो हमारा वर्ड सेकेंड नंबर पे है। कैट स्टार्ट्स विद सी, सी थर्ड में आता है, तो ये थर्ड नंबर पे है एंड उसके बाद फिश जो ए बी सी के बाद आता है। क्लियर? नाउ द सेकेंड सेट ऑफ वर्ड्स। फाइन, अब सेकेंड सेट ऑफ वर्ड्स आर duster, box, elephant, and mouse। ये फोर सेट ऑफ वर्ड्स है। इनको भी हमको फिर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, isn't it? अब duster starts with D, box starts with B, elephant starts with E and mouse starts with M। अब अगर हम अल्फाबेट का ऑर्डर देखें तो A B C D, सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आएगा इसमें से? B, B आएगा। सो पहला हमारा क्या हो जाएगा? BOX, बॉक्स। B हो गया। अब बॉक्स के बाद, B के बाद कौन सा अल्फाबेट आएगा इन सब में से? B तो वी हैव डन। A B C D, D से कौन सा वर्ड है? डस्टर। सो डस्टर, D फोर्थ नंबर का अल्फाबेट है, तो हमने सेकेंड नंबर पे लिख दिया। नाउ A B C D E, E से भी अब एलिफेंट, तो एलिफेंट फिफ्थ नंबर पे है, यहाँ पे डस्टर के बाद आ गया। बचा कौन सा? माउस। सो माउस हमने एज इट इज फोर्थ नंबर पे लिख दिया। तो हमने क्या अरेंज कर दिया? इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया। फाइन, आई होप एवरीबडी हैज डन एंड एवरीबडी हैज अंडरस्टूड हाउ टू अरेंज द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फाइन, नाउ आई विल बी रिवाइजिंग एंड देन आई विल बी इरेजिंग द बोर्ड। फर्स्ट में बॉल, फिश, एप्पल, कैच। सबसे पहले ए आता है अल्फाबेट में, so A से apple first है, then B से ball, C for catch and F for fish. We have arranged as per the alphabets. Then in this duster, box, elephant, mouse, B, इन चारों वर्ड्स में B सबसे पहले अल्फाबेट आता है, after B D comes, isn't it? B C D, then E elephant and M mouse. So I hope everybody has done. So now I'm going to erase this and write the next set of words. Now, the third set of words are
lion and nest. Now we need to arrange them properly. सबसे पहले कौन सा आएगा बेटा? अल्फाबेट्स में देखिए OSLN, फर्स्ट सबका देखते चलो। सबसे पहले अगर हम अल्फाबेट्स में देखेंगे तो इन चारों में कौन सा अल्फाबेट पहले आएगा? लायन। सो वी राइट L फॉर लायन। पहले L आता है। OSLN में कौन सा आता है? L आता है। तो हमने सबसे पहले कौन सा लिख दिया? लायन। नाउ आफ्टर L नेक्स्ट अल्फाबेट कौन सा आएगा? N। सो नेस्ट। सेकेंड नंबर पे कौन सा आ जाएगा? नेस्ट। आफ्टर L हो गया, N हो गया, थर्ड पे हम कौन सा अल्फाबेट देखेंगे? ONS। ONS में से पहले अल्फाबेट में ऑर्डर में क्या आता है? O। सो ऑरेंज। एंड बचा कौन सा? स्नेक। सो वी राइट इन दी लास्ट। हमारा ऑर्डर क्या हो गया? लायन, नेस्ट, ऑरेंज एंड स्नेक। फाइन। लायन L से स्टार्ट है। L अल्फाबेट इन चारों में सबसे पहले L आता है तो L, उसके बाद N आता है तो N से नेस्ट है, उसके बाद O आता है सो O फॉर ऑरेंज एंड लास्ट में S फॉर स्नेक। नाउ the fourth one. Fourth is monkey, then meat, then music and men. अभी तक हमने सीखा था कि हम फर्स्ट अल्फाबेट्स को ले लेते। अब नाउ इफ यू लुक एट दीज फोर सेट ऑफ वर्ड्स, यू कैन सी दैट ऑल दीज वर्ड्स आर स्टार्टिंग विद एम, है ना? सारे ही वर्ड्स एम से स्टार्ट हो रहे हैं। अब हमको कैसे पता लगेगा कि कौन सा फर्स्ट, कौन सा सेकेंड, कौन सा थर्ड? अब जो फर्स्ट वाला आपका सब एम से है तो उसके बाद आप सेकेंड नंबर वाले अल्फाबेट को देखिए। सेकेंड नंबर वाले को आपको पकड़ना है, ठीक है? फर्स्ट में तो सब में एम, तो हमको फर्स्ट वाले को नहीं देखना है। अब हम किसको देखेंगे? सेकेंड नंबर पे जो वर्ड में वर्ड्स है वो। अब सेकेंड नंबर में मंकी में O है, मीट में E है, म्यूजिक में U है और मैन में A है। तो पहले कौन सा आएगा? मैन, क्योंकि M के बाद क्या है? A है, मैन। अब A आया, A के बाद U E O, कौन सा पहले आता है? E आता है, तो वी राइट मीट। ये हमने सेकेंड वाले अल्फाबेट को पकड़ के लिखा है। अब A हो गया, E हो गया, उसके बाद क्या आएगा? O। सो थर्ड प्लेस में क्या आ जाएगा? मंकी। लास्ट में क्या बचा बेटा? म्यूजिक, U आएगा, तो लास्ट में वी राइट म्यूजिक। फाइन। तो जहां पे फर्स्ट वाला लेटर कॉमन हो वहां आप सेकेंड नंबर पे देखेंगे। क्लियर? तो हमारा क्या हो गया? मैन, मीट, मंकी, म्यूजिक। नाउ the fifth set of words: fan, fun, fruit and found. Again F is common in all these words, तो हम किसको देखेंगे? अब सेकेंड लेटर को हम देखेंगे। सबसे पहले कौन सा आता है? A। सो फर्स्ट पे आएगा फैन। फाइन। नाउ आफ्टर A U R and O आर देयर। फाइन। तो सेकेंड पे U R and O में पहले कौन से आता है? O। सो सेकेंड पे वील राइट फाउंड, FOUND, फाउंड। नाउ अब बच्चा U and R, पहले कौन सा आता है? R। सो थर्ड पे वी राइट फ्रूट, FRUIT, फ्रूट। बच्चा कौन सा? फन, सो दैट गोज इन द लास्ट। फाइन। तो आई होप अभी सबको समझ में आ गया है
कि जहाँ फर्स्ट लेटर कॉमन होता है वहाँ हम सेकेंड वर्ड के ऑर्डर में सेकेंड नंबर के अल्फाबेट को देखते हैं. तो क्या हो गया? फैन, फाउंड, फ्रूट, फन. So I hope all of you have understood this exercise, children, and I'm sure all of you will write this exercise neatly in your English notebook, because there is no space in the book to write the words in the correct order as per the alphabets. Fine. So that's all for today. Students, do learn and revise the taught exercises. Complete the exercises in the notebook and the textbooks. That's all for today, children. Thank you, students. Good day ahead.